Hello friends, we are started session number 9, chapter 5, cell structure and organization. So now in this session we are discuss about Golgi apparatus and ribosome cell organelles of the eukaryotes. तो हम लोग आज के सेशन में क्या देखेंगे? गोल्गी apparatus, उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और राइबोसोम. So first topic is a Golgi apparatus. So Golgi apparatus is a cell organelles only present in the eukaryotic cell. They are present in plant as well as in animal. The Golgi apparatus was first observed by Camillo Golgi. पहले बार किसने ऑब्जर्व किया था? Camillo Golgi. So now this Golgi apparatus was first described by Dalton and Felix in 1954. तो ये जो गोल्गी apparatus है इसको फर्स्ट पहले बार ऑब्जर्व किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने. इसलिए हिंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स. मगर नाउ दिस स्ट्रक्चर वेयर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय डेल्टन एंड फेलिक्स. डेल्टन DALTON डेल्टन एंड फेलिक्स FELIX फेलिक्स in 1954 by using इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किसने किया था? डेल्टन एंड फेलिक्स. सो गोल्गी apparatus, हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे गोल्गी apparatus की. गोल्गी apparatus कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ फ्यू टू सेवरल हंड्रेड मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज. तो आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि नंबर ऑफ जो कलरफुल बॉडी दिख रही है, these are the aggregation of few to several hundred membrane bound bodies. So now the ultrastructure of Golgi apparatus under electron microscope, it show a number of lamella. आपको जो folded part दिख रहा है, these are called as a lamella. Under electron microscope the Golgi apparatus shows number of lamella. So these lamella membrane are limited flattened sacules. ये लैमिला जो है these are the limited flattened sacules. आपको जो folded part जो दिख रहा है these are the lamella. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैमिला. and these lamella membrane limited flattened sacules they are also called as a cisternae. उसको क्या बोलते हैं? sacules, flattened sacules बोलते हैं या cisternae. now this cisternae associated with the स्मॉल ट्यूब्यूल और वेसिकल्स. आपको बीच में डॉट डॉट दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ स्मॉल वैक्यूल्स और ट्यूब्यूल्स. सो इन एडिशन इट ऑल्सो हैविंग अ लार्ज वैक्यूल्स. ओके, इसके एडिशन में लार्ज वैक्यूल्स है. लार्ज वैक्यूल्स आप लोग वेसिकल्स दिख रहे आपको. दीज आर द वेसिकल्स एंड दीज वेसिकल्स फिल्ड विद द ग्रैनुलर सब्सटेंसेस. दीज वेसिकल्स फिल्ड विद द ग्रैनुलर सब्सटेंसेस. सो हम लोग नाउ तो स्ट्रक्चर वापस ये करेंगे स्टार्टिंग से. सो गोल्गी apparatus was first observed by Camillo Golgi. Hence they are called as a Golgi apparatus. It is a cell organelles only present in the eukaryotic cell. By now in 1954 Dalton and Felix were the first described the ultrastructure of Golgi apparatus with by studying under electron microscope. So अभी स्ट्रक्चरिंग अल्ट्रा स्ट्रक्चर. द गोल्गी apparatus consist of number of lamella. Now this lamella to be a limited flattened sacules. ये जो lamella है these are the membrane limited flattened sacules. In addition they also having some vesicles or tubules. Okay, along with these vesicles large vacuoles are also filled and these vacuoles are filled with the granular substances. तो आप लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आपको दिखेंगे फ्लैटेंड बॉडी. सो दीज आर गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ फ्यू टू सेवरल हंड्रेड मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज. तो ये इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स में फ्यू टू सेवरल हंड्रेड मेम्ब्रेन बॉडीज है एंड दिस मेम्ब्रेन बॉडीज द फ्लैटेंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ लैमिला. लैमिला कैसे? लिमिटेड मेम्ब्रेन से. दीज आर द लिमिटेड flattened membranes.
Okay, these are called as a cisternae. So जो folded part is these are called as a cisternae. Cisternae also associated with the vacuoles. Some large vacuoles are also present, and these large vacuoles also filled with the amorphous or granular substances. आप लोग डायग्राम में नीचे देख सकते हैं vacuoles में there is a amorphous और larger क्या present है substance present in the vacuole. So ये हुआ आपका ultrastructure of Golgi apparatus. So now next one is the function. So what is the main function of this Golgi apparatus? आप लोग नीचे के डायग्राम में देख सकते हो, ये पूरा फंक्शन दिया, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो नाउ Golgi apparatus मॉडिफाई प्रोटीन एंड लिपिड. Golgi apparatus का मेन फंक्शन क्या है? इट मॉडिफाई प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. देखो पहले के डायग्राम इतना ही क्लियर कट आपको नहीं दिख रहा था, बट नाउ इन दिस अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं, बाद में फंक्शन देखते हैं. अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आप लोग जो दिख रहे हैं, दीज आर द जो फ्लैटेंड बॉडीज हैं, सेवरल फ्लैटेंड बॉडी कितनी रहती है? दीज आर एग्रीगेशन ऑफ फ्यू टू सेवरल हंड्रेड मेम्ब्रेन बॉडीज. These flattened bodies called as a lamella. Lamellas are the limited membrane. Limited membrane flattened bodies called as a cisternae. इसको क्या बोलते हैं? Cisternae. Cisternae associated with the vesicles. छोटे छोटे vesicles आपको दिख रहे हैं. Some vesicles filled with the granules. इसे large granules filled. ये structure है. So now इसके function पे जाते हैं. Now it modify proteins and lipids. Golgi apparatus क्या modify करता है? It modify proteins and lipid. Now it remove the process material which is formed by the cell. जो cell process material form करता है, it is removed by the Golgi apparatus. So now you can easily observe कि यहाँ पे रिसीविंग साइड ऑफ द Golgi apparatus क्या रिसीव कर रहा है? प्रोसेसिंग मटेरियल. ये प्रोसेसिंग मटेरियल लेके इट फॉर्म्स अ न्यू वेसिकल्स. एरो से जाओ आप लोग. सो दिस it receiving processing material to form vacuole, and this vacuole later on the plasma membrane it pour, means it help to remove the processing material from the cell. तो सेल का जो प्रोसेसिंग मटेरियल है, ओके, वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा है. ये प्रोसेसिंग मटेरियल किसको दे रहा है? Golgi apparatus. Golgi apparatus रिसीव कर रहा है. रिसीव करके ये क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है प्रोसेसिंग मटेरियल ऑफ द सेल. सो मेन फंक्शन क्या है इसका? पहला फंक्शन क्या था? इट मॉडिफाई प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. सेकंड, प्रोसेसिंग मटेरियल टू बी रिमूव फ्रॉम द सेल. तो ये प्रोसेसिंग मटेरियल रिमूव करता है फ्रॉम द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पोर कर देता है, मीन्स इट रिमूव. इट मेक एंड सीक्रेट म्यूकस. Golgi apparatus क्या सीक्रेट करता है? इट मेक एंड सीक्रेट म्यूकस. म्यूकस को बनाता भी है और सीक्रेट भी करता है. पैकेजिंग प्रोडक्ट इनटू द वेसिकल एंड ट्रांसपोर्ट. पैकेजेस प्रोडक्ट इनटू द वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट. ये क्या करता है? कुरियर का काम करता है. पैकेजिंग मटेरियल्स, एक पैकेट लेता है, पैकेजिंग लेता है मटेरियल सेल से और उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्टेड करता है. तो हम लोग कुरियर का काम कर सकते हैं. पैकेजिंग मटेरियल लेता है एंड इट ट्रांसपोर्टेड. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ Golgi apparatus. ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे. देखो फास्ट फॉरवर्ड जाओ. Golgi apparatus का मेन फंक्शन क्या है? इट मॉडिफाई प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. Okay, processing material to be removed from the cell, it make and secrete mucus, packaging product into vesicles and transport. तो हम लोगों ने आज Golgi apparatus का स्ट्रक्चर क्या देखा? Golgi apparatus is a cell or the cell organelles only present in the किस में present है? Eukaryotic cell. It was first observed by Camillo Golgi, hence they are called as Golgi apparatus. But in 1954, by using electron microscope, Dalton and Felix describe the ultrastructure of Golgi apparatus. So Golgi apparatus में क्या है? Golgi apparatus consists of aggregation of few to several hundred membrane bound bodies, and these bound bodies to form flattened lamella. These lamella are the limited flattened saccules. They are also called as a cisternae. They are also associated with the small tubular vesicles. Sometimes they also having a large vacuoles filled with amorphous or granular substance. These are the structure, and now these are the function. It modify proteins and lipid. Process material to be removed from the cell. It makes secrete mucus, packaging product into the vesicles for transport. ये क्या करता है? पैकेजिंग प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द वेसिकल्स. ओके, so these are the functions of Golgi apparatus. Now next one is a ribosome. So ribosomes are the cell organelles
present in prokaryotes as well as in eukaryotes. Ribosome is a cell organelles present in the prokaryotes. Prokaryotes में भी present है, and it is also present in the eukaryotes. So now in the ribosome, so ribosomes are granular organelles. Ribosome कैसे हैं? Granular organelles which are not membrane bound. ये membrane bound से which are not membrane bound, उसको कुछ membrane नहीं है. So ribosomes are the granular organelles present in the prokaryotes and eukaryotes which are not membrane bound. So chemically ये जो ribosomes जो है, these are the chemically composed of ribonucleoprotein. So it is a chemically composed of ribonucleoprotein. किससे बना है? Ribonucleoprotein. So in 1955, the PALADE, P-A-L-A-D-E, PALADE was the first observe the structure of ribosome. तो 1955 में PALADE ने क्या किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व किया था राइबोसोम स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो नाउ इन यूकैरियोट जो राइबोसोम जो है, दिस राइबोसोम्स फाउंड टू बी अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यूकैरियोट्स में राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है. इट अटैच विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. ओके, दे आर ऑल्सो फाउंड इन स्कैटर्ड फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड क्लोरोप्लास्ट. सो नाउ इन यूकैरियोट की बात करें हम लोग, इन यूकैरियोट्स the ribosome found attached to the membranes of endoplasmic reticulum. यूकैरियोट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच है राइबोसोम्स. ओके, बट नाउ इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्कैटर फॉर्म. स्कैटर फॉर्म में भी प्रेजेंट है इन द साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट है एंड क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में भी राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. अभी हम लोग उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे. ओके, नाउ अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप राइबोसोम्स आर सीन इन अ स्पेरिकल बॉडी. राइबोसोम कैसे दिखता है आपको? स्पेरिकल बॉडी में दिखता है. आपको जो दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उससे एकदम गोल गोल दिखता है, एकदम स्पेरिकल बॉडी में. सो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप राइबोसोम्स आर सीन इन अ स्पेरिकल बॉडीज एंड देयर डायमीटर इज 150 to 250 एंगस्ट्रॉम. इसका डायमीटर कितना है? 150 to 250 एंगस्ट्रॉम. ओके, यूजुअली दे आर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर. राइबोसोम कैसा है? यूजुअली दे आर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर. तो राइबोसोम के बारे में हम लोग वापस रिपीट करते हैं. सो राइबोसोम्स आर द ग्रैन्युलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. सो केमिकली इट इज कंपोज ऑफ ribonucleoprotein. In 1955, PALADE was the first observe the ribosome structure under electron microscope. So now in eukaryotes, ribosomes are associated with the endoplasmic reticulums. They attach to the endoplasmic reticulum, but they are also present in the scattered form in the cytoplasm. They are also present in the mitochondrial matrix. They are also present in the stroma of the chloroplast. So now in the ultrastructure under electron microscope, it shows a spherical body. Ribosome कैसे दिखता है आपको? Spherical body. Their diameter is 150 to 250 angstrom. डायमीटर कितना है? 150 to 250 angstrom. ओके, नाउ दिस राइबोसोम ऑल्सो कंटेन आरएनए एंड प्रोटीन. राइबोसोम में क्या कंपोजिशन क्या है उसका? इट कंटेन आरएनए एंड प्रोटीन. सो नाउ हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे राइबोसोम की. सो राइबोसोम इज कंपोज ऑफ टू सब यूनिट. इट कंपोज ऑफ टू सब यूनिट्स, लार्जर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट. दो यूनिट से बना है, लार्जर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट. हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोट्स. नाउ इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर द 70S टाइप. प्रोकैरियोट में राइबोसोम कितना है? 70S टाइप. और 70S टाइप किससे बना है? ओके, 50S लार्जर यूनिट एंड 30S स्मॉलर यूनिट. तो 50 + 30 कितना होता है? 80. बट हम लोगों ने कितना बोला? 70S, बिकॉज दे आर एडिटिव इन नेचर. एडिटिव नेचर होने की वजह से -10 करना पड़ता है. तो वी आर नॉट कंसिडर 80S, उसको क्या बोलना पड़ता है? 70S. सो इन प्रोकैरियोट इट इज़ अ 70S type. The largest subunit is made up of 50S. Largest subunit is a 50S type, and the smaller unit is a 30S type. Total 70S in prokaryotes.
सो नाउ इन यूकैरियोट इट इज अ ATS टाइप. यूकैरियोट में राइबोसोम कितना है? ATS टाइप. सो ATS कैसे बना है? द लार्जेस्ट सब यूनिट इज अ 60S टाइप एंड स्मॉलर सब यूनिट इज अ 40S टाइप. तो हम लोग 60-40 कितना हो जाएगा? नॉट 100 नहीं कंसिडर करने का, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स रॉन्ग करने का. वी आर कंसिडर एज अ ATS बिकॉज मैंने पहले बोला इट इज़ अ एडिटिव इन नेचर. सो इन यूकैरियोट्स इट इज़ अ ATS टाइप कंपोज ऑफ 60S लार्जर यूनिट एंड 40S स्मॉलर यूनिट. ये हुआ राइबोसोम का स्ट्रक्चर. सो नाउ नेक्स्ट वन इज अ फंक्शन. सो राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम क्या है? इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्टरीज, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? राइबोसोम. सो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्टरीज. ओके. सो राइबोसोम्स link amino acid together in the order of specific by the messenger RNA. During protein synthesis, the ribosome arrange all the amino acid in a proper sequence. जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो राइबोसोम RNA जो अमीनो एसिड्स जो है उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए हेल्प करते हैं. बिकॉज प्रोटीन इज मेड अप ऑफ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड एक दूसरे को पॉलीपेप्टाइड चेन से ज्वाइन हो गए तो इट फॉर्म अमीनो एसिड. तो ये जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड की जो बनाने के लिए हेल्प कौन करता है? राइबोसोम्स. ओके. इट ऑल्सो प्रोवाइड अ बाइंडिंग साइट टू द मैसेंजर RNA. इट ऑल्सो प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट ऑफ द मैसेंजर RNA ट्रांसफर RNA during protein synthesis. Okay, so now these are the some functions of the ribosomes. So आज के लिए इतना ही काफ़ी है. Okay, thank you, take care. So now in the next session we are studying another cell organelles. Bye.